مرضی ہے مجھے سزا, چور ہے. میں کہہ رہا ہوں 30 لاکھ روپے جرمانہ ہے. میرے پاس 30 لاکھ کدھر سے ہے؟ 30 لاکھ روپے. میں قسم کا تم نہیں کر سکتے. پاکستان غلام ہے, غلام بن جائے گا. قانون جو ہے نا صرف کاغذی کارروائی ہے. غریب عوام کے لیے جو ہے قانون ہے. میں کہنا فائدہ ہوتا تو اسی ایتھے ہوندے. نہیں, یہ ایک مافیا ہے. پاکستان میں صرف مافیا ہے. نام کیوں نہیں لیتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی بند؟ نام آپ نے پہلے مجھے بتا دیا کہ آپ اس بندوں کا نام نہیں لینے, نہ اس کا لینا نہ اس کا لینا. آپ نے پہلے اب ہم سب کا نہیں لے گا نا. وہ تو بھائی اس کا اگر ہم نہیں لے گا تو پھر اپنا باپ کو بھی نہیں لے گا. نہیں جی, یہ عوام کے لیے زیادہ بہتر ہے. قانون سے ڈر گئے ہیں یا میں کسی قانون سے نہیں ڈرا ہوں. میں کسی بارے میں کوئی کمنٹ نہیں پاس کرتا. جو بندہ زندہ ہے وہی بات کرے گا. یہ انہوں نے اپنے لیے کیا ہے. لینے دینے ہیں جو ہم نے کھانا لوٹنا ملک کو, وہ ہم کسی کو پتہ نہ چلے, چھپا رہے وہ کام. ہمارے پہ کوئی الزام نہ لگائے, میری سمجھ سے باہر ہے. جس کی لاٹھی اس کی کتنے کیس تھے نواز شریف کے اوپر بتائیں مجھے. کسی کی ککڑی چوری کر لینا غریب آدمی 6 ماہ تو اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے حالات کتنے بہتر؟ بہت اچھا ہے انشاءاللہ. ہم قریب ہے مرنے کا, انشاءاللہ خودکشی کا خود ارادہ ہے انشاءاللہ. تو جو اسلام ہے وہ بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے خلاف بات کرنے سے پہلے ثبوت اکٹھے کرو. یہ تو صحیح قانون ہے. یہ آزادی نہیں ہے پاکستان میں. غریب بندہ کیس نہیں کر سکتا. ہم کیا بولے لیڈر کے بارے میں جب انہوں نے پکڑ کے گھر ہی اندر دینا. السلام علیکم معزز ناظرین, اسٹار ایشیا نیوز کی طرف سے سلطان بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج عوام کے پاس چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے حد تک کہ عزت قانون, اس سے عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوگا یا یہ فائدہ حکمرانوں کے لیے ہے. عوام کے پاس چلتے ہیں, انہی سے جانتے ہیں کہ اس قانون کا انہیں کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے. آئیے میرے ساتھ. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا, ایک نا قانون بنا ہے حد تک کہ عزت قانون, آپ کو پتہ ہے وہ قانون کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, حد تک ہمیں جو ہوتی ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں جو عزت نفس پہ کوئی وار کرے اس کے متعلق ہوتی ہے کہ وہ حد تک کا جو دعویٰ بھی دائر کیا جاتا ہے کہ وہ عزت نفس پہ جو کوئی بات ہوتی ہے اس کے متعلق وہ ہوتا ہے قانون. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو قانون ہے یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کے لیے عوام بات کرتی ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ قانون یا کوئی بھی چیز ان کو فائدہ دیتی ہے, نقصان دیتی ہے جن کے اندر ضمیر زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے عزت زندہ ہوتی ہے ان کو یہ فائدہ یہ نقصان دیتی ہے, اس پہ اثر کرتی ہے. احساس رکھنے والے انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں, ان کو یہ فیل ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, یہ قانون ان چیزوں کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو اپلائی ہوتا ہے جو عزت رکھتے ہیں اپنے اندر. جن کا اپنا ضمیر مر چکا ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں کرتی ہیں. سر مثال کے طور پر اگر ہم بانی پی ٹی آئی کی بات کریں تو انہیں اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گھڑیاں چوری کی ہیں, کیونکہ اگر کوئی کہے گا تو وہ کہیں جی عدالتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں نے تو گھڑیاں چوری نہیں کی. میں کسی بھی لیڈر کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اگر میں ہر ایک کی بات کرنا شروع کروں تو یہاں پہ رات پڑ جائے. ٹھیک ہے, میں کسی لیڈر کے معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, قانون سے ڈر گئے ہیں یا میں کسی قانون سے نہیں ڈرا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ مزدوری کرنے والے لوگ, اپنا کام کرنے والے لوگ, ہم ان جھنجٹ میں نہیں پڑ سکتے ہیں کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان نے جو بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے نا, صرف اور صرف اس کو یہ ہے کہ صبح کمانا رات کو کھا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی غرض نہیں کہ کون چور ہے, کون حاجی ہے, کون تسبیح لے کے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کسی قسم سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ جو بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا. سر اس کا اطلاق سوشل میڈیا پر بھی ہوگا, یعنی کہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا جی ایک بندے کو انہوں نے کہہ دیا یہ گندم چور ہے پاکستان کا, اس نے اربوں روپے کی گندم چوری کیا, اور آپ نے وہ خبر یہ بتائیں مجھے, یہ صرف یہ بتائیں کہ آج تک کسی لیڈر پہ کوئی الزام ثابت ہوا ہے؟ بہت سارے لیڈرز پہ ثابت ہوا ہے. مجھے ایک کا بتا دیں. مجھے ایک کا سمجھتے ہیں کسی کے خلاف الزام ثابت ہی نہیں ہوا. آج تک کوئی عدالت یہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ یہ فلاں نے, مجھے بتا دیں, نوٹیفائی کر دیں کسی جگہ پہ نواز شریف پہ خان پہ کر کے اس کے بعد ان کو سزا ان کو مکمل ہوئی ہے؟ نہیں, وہ کسی ایک لیڈر کی بتا دے کہ سزا مکمل ہوئی ہے. جناب یہ غریب کے لیے یہ قانون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو 5 سال کی اگر سزا ہوتی ہے تو وہ 5 سال پورے کر کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس کو یہ سزا ہوئی ہے, اس کے اوپر بالکل آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, یہ کوئی شناخت ہوئی ہے کہ جناب اس نے یہ کام کیا ہے اور اس وجہ سے یہ اس کو سزا دی گئی اور اس نے سزا پوری کی ہو. آپ سمجھتے ہیں جو ہماری عدلیہ وہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف اپنی روزی کے متعلق بات کروں گا کہ جو بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ کرتا ہے نا, اس نے اپنے ناخنوں کے ساتھ کمانا ہے اور رات کو کھا لینا ہے. میں کسی بارے میں کوئی کمنٹ نہیں پاس کرنا. نہیں کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ قانون بنا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں فائدہ مند. میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی کمنٹ پاس ہی نہیں کرنا چاہتا. میں نے تو وہ بتایا کہ جو بندہ زندہ ہے وہی بات کرے گا.
उसी को ये फील होगी बात। तो आप भी तो जिंदा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फील हो रही, मैं अपना काम की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने कमाना है, रात को ले जाना है बस। उसके अलावा मुझे कोई गर्ज नहीं है कौन चोर है, कौन डॉलर कितना खा गया है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि हमने सुबह कमाना है, रात को खा लेना है। इस कानून से बेसिकली आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है या कुछ भी नहीं? डेफिनेटली ये मुझे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। मेरी इज्जत पे कोई बात आएगी तो मैं उसको अपना अप्लाई कर सकूंगा इस कानून को अपने ऊपर। इसका ये भी दूसरा पॉइंट है कि आप किसी के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। तो जाहिर सी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। कैसे कर सकते? मेरे पास कोई सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैंने कोई लीडर के बारे में कोई बात की हो, मेरे पास कोई सबूत नहीं कि नवाज शरीफ चोर है, मेरे पास कोई सबूत नहीं कि जरदारी चोर है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान चोर है। मैं किसी बारे में कोई बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, ये झूठ के ज़ुमरे में नहीं आती है, इल्ज़ाम तराशी में नहीं आती है। क्या हमें ये दीन सिखाता है कि हम बगैर को देखे, अपने कानों से सुने और बगैर आंखों के देखे किसी को कोई बात करें? हमें दीन सिखाता है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो दीन की बात करूंगा कि हमारा दीन ये सिखाता ही नहीं कि इल्ज़ाम तराशी करना। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने अपने कानों से नहीं सुना, ठीक है। हम कई बातों पर वो अंधा यकीन नहीं कर सकते, मेरा ये कहना है। यानी आप बेसिकली यही समझते हैं कि ये कानून हमारे लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है, डेफिनेटली फायदेमंद है। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। सर एक नया कानून पास हुआ है, हद के इज्जत कानून। जी, आपको जी। पता है क्या है? ये इन्होंने अपने लिए किया है, को हमारे लिए कानून किया है? ये अपने लिए किया कि अभी- हमारे जो अपना लेने देने हैं, जो हमने खाना लूटना मुल्क को, वो हम किसी को पता ना चले, छुपा रहे वो काम, हमारे पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए। अभी मैंने क्या हमारे लिए क्या किया कानून, हमारे लिए बताए ना। आपसे पहले एक बंदे का इंटरव्यू किया, हाँ जी। उन्होंने कहा है जी इसके लिए तो आवाम को फायदे ही भरा है। क्या फ़ायदा? वो आदमी मेरे पास लाए, मुझे बताए वो आदमी, इसका क्या फ़ायदा? ये जितने भी सरमाएदार या MP है या MN या वजीर या मिनिस्टर हैं, इन कानून तो इन्होंने किया है ना आपने किया ना मैंने किया है। उन्होंने तो अपने लिए कानून ये बनाया है ना कि हम जो मुल्क को लूटें, जो खाएं पिएं, किसी को हमारा पता ना चले, ये कानून हमने पास कर दिया जी। नहीं तो आप नहीं समझते वैसे भी किसी पर इल्ज़ाम लगाना बगैर सबूत के गलत है? बगैर सबूत के तो कोई भी नहीं इल्ज़ाम लगाता। सर देखे ना, हाँ अब जो जी। गंदम स्कैंडल की खबरें सोशल मीडिया पर सारी दुनिया ने देखी हैं। देखिए, मैंने भी देखी एक है। लास्ट PM को प्रोमिनेंट करके उन्होंने बताया जी इसने अरबों रुपए की चोरी किया, हालांकि कहीं से साबित नहीं हुआ। क्या ये गलत नहीं है? ओ भाई मेरे, ये छोड़ दें, ये एक सियासत है, सारा कुछ ही हो रहा है इस मुल्क में, समझ आई है। ये मैं तीसरी चौथी मरतबा ये नून लीग आ चुकी है। मुझे समझ नहीं आती कि अवाम क्या चाहती है। आजमायों को ज़माना मेरी समझ से बाहर है कि जो अच्छा आदमी है, जो मुल्क के लिए अच्छा है, वो उसको अंदर डाल दिया। नहीं तो सर ये बताएं ना, आपके लिए तो फायदा हुआ कि यानी कि कोई आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता बगैर सबूत के? बगैर सबूत के कोई बात नहीं ना कर सकता। चलो मैंने आपकी बात मान ली, बगैर सबूत के बात नहीं कर सकता। जब मैं एक चोरी करूंगा, आप मुझे नहीं देख रहे, आपके पास सबूत ही नहीं है, बताओ सबूत मुझे। ही नहीं है तो फिर मैं आपके खिलाफ बात कैसे कर सकता हूँ? बात आपको शायद ही याद होगा, ये कहा था कि ये भी हिसाब दे अदालत में, मैं भी अदालत में जाता हूँ, मैं भी अपना हिसाब देता हूँ। याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल याद है। हाँ जी, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने आके, नून लीग वालों ने आके क्यों नहीं अदालत में दिया साहब? कहता मैं अदालत में पेश होता हूँ, सर नून मेरा लीग साबित ने करे मैंने मुल्क को कहाँ तक लूटा है। नून लीग ने इमरान भी खान ने ये लफ्ज़ कहा था। सर बात सुने ना, नून लीग ने भी तो हिसाब दिया है। क्या अब वो दिया? अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ओ भाई वो तो बरी होना ही होना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कितने केस थे नवाज शरीफ के ऊपर बताएं मुझे? सर बाइज्जत कितने बरी थे? हो चुकी हैं। ओहो, एक गरीब आदमी है, किसी की कुकड़ी चोरी कर लेना गरीब आदमी, 6 माह तो उसकी जमानत ही नहीं होती। तो फिर आप समझते हैं जो तो जो है इन्होंने तो मुल्क को लूटा। सर अगर समझ आई? इसी अगर तो ये इसी सारे केस भी इसी इनके बात- खत्म हो गए। अगर इसी बात से देखें तो जो बानी पीटीआई हैं उन हाँ। पर भी 200 से ज्यादा केस बने हैं। फिर तो साबित करें, साबित किया, साबित किया, इमरान खान ने तो साबित किया है, अच्छा, उसने तो साबित किया है। मुझे ये बताएं, इस कानून से अवाम को फायदा होगा या नुकसान होगा? अवाम को कोई फायदा नहीं मेरे भाई, अवाम को फायदा क्या नहीं? फायदा मुझे बताएं। मिसाल के तौर पर आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, हाँ जी। कोई बंदा है वो आके आपके खिलाफ बातें करनी शुरू कर देता है, जी ये बंदा सही नहीं है, हाँ जी। इस बंदे ने ये बेईमानी की है, सिफारिश की है, रिश्वत ली है, यानी कोई भी गलत काम किया है,
तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं ना। तो मैं सबूत पे एक चीज मैं चोरी की है, ठीक है, तो आपके पास सबूत है, बताओ मुझे। अगर मेरे पास सबूत नहीं होगा तो मैं बात ही क्यों करूंगा। हाँ जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे ने चोरी की है तो उस पे आपको कैसे पता उसने चोरी की, आपके पास सबूत है? आप ही बता रहे हो ना कि ये कानून पास हुआ है, भी किसी पे इल्जाम नहीं लगाना। इमरान खान ने तो साबित किया था। इल्जाम लगाना है, हाँ। लेकिन ये नहीं लगाना बगैर सबूत के। उसने तो पेश किया सबूत कि मैं अदालत में पेश करता हूँ सबूत, मेरे पास सबूत हैं। कितने केस थे नवाज शरीफ के ऊपर, बरी हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मुझे ये बताएं वो कैसे बरी हो गया? पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदालतों ने की। हाँ जी, और भाई मेरे बस छोड़ दें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पाकिस्तान में कानून हमारा ऐसा ही है कि गरीब आदमी किसी की एक मुर्गी चुरा लेना तो समझो उसकी माफ़ी नहीं है। यहाँ तो अरबों रुपये खरबों रुपया लोग खा के तो बाहर फिर रहे हैं, पूछने वाला है उनको कोई? बताओ मुझे। मुझे ये बताएं, सिर्फ गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। आप बेसिक ये समझते हैं कि इस कानून से जो आम इंसान है उसको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा नहीं हुआ? क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फायदा? ये अब जेलों में जितने भी ये सरमाएदार लोग हैं इनको एसी मिला हुआ है, एलसीडीयाँ मिली हैं, हर चीज़ की सहूलत है। तो गरीब भी तो जेल में है, उसको सहूलत है, सहूलत है गरीब को। बिल्कुल सिर्फ अमीर को सहूलत है, गरीब को सहूलत नहीं है मेरे भाई। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, सवालिया निशान है। लेकिन हाँ जी। हमारी बात फिर वही है कि हुकूमत का कहना है कि इससे पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनको फ़ायदा होगा, कोई इनके खिलाफ बात नहीं कर सकेगा बगैर सबूत। अब मेरी बात सुने, अब ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमने महंगाई नीचे ले आए हैं, बिजली महंगी हो जा रही है। ये क्या महंगाई नीचे आई मेरे भाई, बताओ? रोज बिजली महंगी, रोज बिजली महंगी, रोज चीनी महंगी, रोज आटा महंगा, हर चीज़ महंगी है। तो मुझे ये बताओ कि भाई महंगाई क्या नीचे आई है? गरीब तो उसी चक्की में दोबारा पीस रहा है। ये चीनी दे लो क्या रेट पे चले गई है, ये बिजली रोज बढ़ रही है, तेल सस्ता कर देते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं। बताओ मुझे क्या रिलीफ मिला गरीब को? हम जी इलेक्शन जीतेंगे, हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे ये बताओ, ये भी मेरे भाई खड़े हुए हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो कि क्या हालात जा रहे हैं इस मुल्क के, इनको भी पता है। जो अच्छा कह रहे हैं जी बहुत अच्छे जा रहे हैं। सर साथ आइएगा काइंडली जरा, कि जो अच्छा जो सर जो है ना करीब आए, जरा करीब आए उसको सर, आप करीब हैं। डाल दिया कि जो अच्छा आदमी है उसको जेल में डाल दिया। सर आप क्या समझते हैं मुल्क के हालात कितने बेहतर हैं? बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, अन करीब है मरने का, इंशाल्लाह खुदकशी का इरादा है इंशाल्लाह। बिजली का बिल आ रहा है, हमारा पहला आता था 6-7 हज़ार, इस दफा आया 29,000 रुपये। बहुत हालात अच्छा है इंशाल्लाह। ये जो है ना, ये भूखा जो है हमारे ऊपर जो मुसलत हुआ, इंशाल्लाह इसका पेट भर जाएगा, फिर हालात ठीक हो जाएगा। अगर इनका पेट खाली होगा फिर बाहर मुल्क से परदेसी लोग आया मजदूरी कमाने के लिए, इंशाल्लाह जी अपने इलाके चला जाएगा, लंदन, उधर यूरोप, फिर हमारा हालात ठीक हो जाएगा। आने की देर है, ये सब लंदन भाग जाएंगे, ये मैं सही कह रहा हूँ आपको, उसके आने की देर है, ये सब भाग जाएंगे लंदन इंशाल्लाह। अच्छा खान साहब मुझे एक और बात बताएं, आपकी बात बिल्कुल सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मैं कोई अपना कमेंट नहीं दूंगा। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने एक कानून पास किया, वो कानून ये है कि किसी के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते अगर हमारे पास सबूत ना हो। ये कानून सही है? आपको इस बारे में क्या कहते हैं? तो सारा आवाम को पता लगा चोर चोर ही है, उसने ये बोल दिया मुंह चुप करो, इसके खिलाफ ये ना बोला चोर है, तो ये तो सारी दुनिया को पता है चोर है, बाहर मुल्क वाले को पता है चोर है। तो उसने यही सर यार भाई बात सुन लो, उसने बेट का निशान छीन लिया, झंडे का निशान छीन लिया, वो फिर भी लोग निकल रहे। ये इसको मुंह पे कौन बंद करेगा? मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ चोर है, जो मर्जी है मुझे सजा, चोर है, मैं कह रहा हूँ। 30 लाख रुपए जुर्माना है। मेरे पास 30 लाख किधर से है? 30 लाख रुपए नहीं तो मैं किधर से 30 लाख दे दूंगा? फिर क्या करेंगे आप? 30 लाख भी नहीं है, सबूत है आपके पास कि उन्होंने वो किया? क्या मतलब? आपके पास सबूत है कि नवाज शरीफ ने चोरी की है? तो ये भागा क्या हुआ? भागे तो मतलब उसका भाई का हुकूमत आ गया, वो कमाई करने आया भाई इधर, वो पाकिस्तान बनाने नहीं आया, वो अपना कमाई पेट भरने के लिए आया। पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर हैं जो मतलब बवक्त जरूरत बाहर गए, नवाज शरीफ भी गए थे। तो नवाज शरीफ का ही बात कर रहा हूँ सर, और भी बहुत सारे लीडर बाहर कौन गए थे। किया था? यानी आप समझते हैं और कोई भी नहीं किया? और कौन किया? उसका घर है किया, उनका घर है उधर, उनका क्या है? वो लीडर है, उनको लीडर नहीं बोलते हैं, उनको हम लोडर बोलते हैं। लोडर, ये लोडर है, लीडर नहीं है।
अच्छा मुझे आप और लोडर से भी लीडर बना देते हैं। सर अगर हुक्मरानों को आप समझते हैं कि हुक्मरानों को इस कानून से फ़ायदा हुआ है तो आवाम को भी तो फ़ायदा हुआ है, आपके खिलाफ भी तो कोई बात नहीं कर सकता। क्या खिलाफ? यानी कि कोई आपके खिलाफ बात करने से पहले सोचेगा। यानी कि मिसाल ये है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, कारोबार है, कोई शॉप है, कोई लोग आपके खिलाफ ऐਵੇਂ बातें करते हैं तो अब वो आपके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास सबूत नहीं होगा। आपको तो फायदा यार ये क्या बचो, हम मीडिया वाले क्या बचो वाला बात। मेरे अंदर एक बात नहीं है तो कौन करेगा? अगर किसी के अंदर बात है गलत है तो उनके अंदर सारा दुनिया बोलेगा। मेरे अंदर नहीं है। एक मिसाल है, मैं चोर नहीं हूँ तो कौन ये मुझे चोर कह सकते? नहीं कह सकते। उसको खुद ही अपना ज़मीर मलामत करेगा, भाई मैंने नाजायज़ किया। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे भी पता है मैं चोर हूँ, हमारे बच्चों को भी पता है ये चोर है, हमारे ख़ानदान को भी पता होगा चोर है। अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो अपना ज़मीर जो है ना, आप मुझे चोर नहीं कह सकते। ये बात है। कानून का क्या है? कानून तो है, वो कितना केसेस है वो दोबारा पकड़ते। वो 9 मई में किधर था? वो उसके अंदर है तो फिर उनको भी छोड़ दूँ। वो 9 मई में था बाहर, वो किधर था? वो तो जेल के अंदर था, तो उसको क्यों पकड़ाया? यानी आप बेसिकली ये समझते हैं कि इस कानून से हुक्मरानों को फ़ायदा हुआ है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यार ये कानून किधर है? ये हुक्मरान है, हुक्मरानों को फायदा, ये लोडरों को फायदा है, लीडर को नहीं है। लोडरों को, जो लोडर नहीं है जो हमारे इलाके में आया, जो पाकिस्तान में जो लोडर आया, इनको फायदा है, हमारे को कोई फायदा। गरीब को कौन फायदा दे सकते? हम गरीब लोग हैं। ये बोर्ड लगा हुआ, इसका भी हमारा 24,000 रुपये बिल आया। खाली बोर्ड का ये फ्लेक्स लगाया, इनका भी दीवार के साथ लगाया, 24,000 आया। सफाई वाला है भाई, आपने 12,000 रुपये जमा कर, भाई किस चीज़ का? वो नवा बाल्टी लिया, बाल्टी टाउनशिप में 2 रखा हुआ और इधर से करोड़ रुपए बटोर के लेके गया। भाई किसने बोला है? किसने ये भेजा? ये मुहसिन नकवी ने टेका उठाया, बोर्डों का भी, वो सफाई का भी। भाई इनको पैसा ही देने, करोड़ रुपए ये मार्केट से बटोर दिया, करोड़ रुपए। कोई है पूछने वाला? आप बोलते हैं लीडर है, लीडर नहीं है, लोडर है, पेट भरने वाला है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपने अवाम का गम गुस्सा देखा। यहाँ पर अवाम का कहना था जी अवाम को फ़ायदा नहीं है इस कानून से, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन्हें इस कानून से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने एक कानून पास किया है, वो कानून ये है कि आप किसी के भी खिलाफ बात नहीं कर सकते अगर आपके पास सबूत ना हो। आपको लगता है ये कानून फ़ायदेमंद है? नहीं भाई, क्यों भाई? किसी की बात, ये तो आज़ादी है ना पाकिस्तान में, किसी की बात कर दो मीडिया वाला, तो हम आज़ाद है। तुम आज़ाद नहीं है? बिल्कुल आज़ाद है। फिर तुम नहीं। बात कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सबूत होंगे तो हम बात कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्यों हमारे नहीं कर पास हर चीज़ का सबूत है लेकिन नहीं कर सकते। मीडिया, अभी हमारे मीडिया जो गुलाम है वो बेच सकती है, जो जितना पैसे लोग देता है इसका बोलता है। मुझे ये बताएं, आपको इस कानून से क्या लगता है, कोई फ़ायदा होगा आम आवाम को? कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा ना, बताएं ना, क्यों नहीं होगा आवाम को फ़ायदा? आवाम को वही पैदा नहीं होगा था जो लोग महंगाई का, तुम मीडिया वाले महंगाई से बाजार में पूछते हैं ये है, ये आप पर पाबंदी लगाएगा तो नशर कर सकते हैं? नहीं कर सकता। फिर मुझे ये बताएं, इसमें हुकूमत को फिर फ़ायदा, अगर आवाम को फ़ायदा नहीं है किसको फ़ायदा है इस कानून के तहत? ये हमारा तो जो इस्लाम है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी के खिलाफ बात करने से पहले सबूत इकट्ठे करो। ये तो सही कानून है। सबूत इकट्ठे करो, आपके पास सबूत है, तुम बयान दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं दे सकते। आप तुम जाओ जो अडेला में पढ़े है ना, खान साहब, पता है आपको? जानते बिल्कुल हैं? पता है, बिल्कुल पता है। इसके पीछे तुम एक बात करो, तुम भी अडेला जेल जाएगा। सर मुझे ये बताएं, ये जो कानून है अब क्यों इससे इतने नाला नजर आते हैं कि ये कानून बिल्कुल ही सही नहीं है? बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। फिर सर देखे ना, आपकी शॉप है, अब कोई आपकी दुकान के खिलाफ बात तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास सबूत ना हो। तो आपको तो फायदा हुआ। ये तुम्हारे मीडिया वाले ना जो पैसे देगा इसका बात कर देगा। सर हम देखें, हम आपकी बात को सुनाने के लिए आए हैं, फायदा नहीं है इसमें। नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं काटा, जो हमें लगा कि ये बेहतर है और जो बंदा मतलब सही बात कर रहा है हम तो उसकी बात कर रहे हैं। मैं कसम का तुम नहीं कर सकते ना, क्यों करना है तुम बात इस बात पर? आप किस चीज़ की कसम करते हैं? आपको कैसे पता? हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी भी बात सुनवाई है और जो मुस्लिम लीग नून के उनकी भी बात चलवाई है। जो आप कैसे कसम खा सकते हैं? यार जो मीडिया ना वो हकीकत नहीं बता देगा, नहीं बता देगा। क्यों नहीं बताएगा? आपको क्यों लगता है? यार मैं मिसाल वो सारे ऐसे मतलब मैं मिसाल देता हूँ। आजकल जो तो आपको क्या लगता है इस कानून से आपको भी तो फायदा होगा? आप समझते हैं आपको कोई फायदा नहीं है? ये लगाएगा नहीं लगाएगा कोई पैदा नहीं है। पाकिस्तान गुलाम है, गुलाम बन जाएगा। इतनी मायूसी इतनी नाउमीदी कहाँ से लेकर आ गए आप? वो बस ये लेकर आएगा जो हालात है इस, यानी इतनी नाउमीदी कहाँ से? बस ये ना उम्मीद है ना, आपको पता नहीं है। आपको इस कानून के जो मुतालिक बोलेगा मुझे ये बताएं, ये जो कानून है आपको इस कानून के मुतालिक पता कहाँ से चला था? पाकिस्तान में कानून है ना? कौन सा कानून है पाकिस्तान में? है कानून? बिल्कुल है। किधर है? हम तो ये कानून नहीं मांगते। अगर कानून ना होता तो आपकी शॉप एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा चोरी हो चुकी होती। कानून है ही नहीं। ये जरूर कह सकते हैं कि कानून की बालादस्ती में कुछ कमी जरूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कानून है। जो कोई जीतेगा वो हारेगा, जो हारेगा वो जीतेगा। ये कानून तुम मांगते हैं पाकिस्तान? यानी कि आप सवालिया निशान उठा रहे हैं पाकिस्तान के अदलिया पर, पाकिस्तान के अदारों पर। हाँ बिल्कुल। अगर आप बगैर सबूत के उनके खिलाफ बात करेंगे आपको पता है, कितना सबूत है? आपको पता है आपको 30 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। जो कितना सबूत है? जो हार गया वो जीत गया, जो जीत गया वो हार गया। आपके पास है सबूत? हाँ? आपके पास सबूत ये है? सारों के पास सबूत है। आपके पास है? हम तो इलेक्शन में नहीं खड़ा था। जब आपके पास सबूत ही नहीं है फिर आप कैसे किसी पर इल्जाम लगा? खड़ा था, हम खड़ा था तो फिर ये कितने सबूत से आप पेश कर दिया? नहीं, आपके पास तो सबूत नहीं है। कोई मांगता है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी रहमत है। सर मुझे ये बताइएगा, एक नया कानून पास हुआ है हत्या इज्जत कानून, उसके मुतालिक कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, हम लोग तो नहीं इसके मुतल्लिक जानते कोई सर चीज़। वो कानून ये है कि आप किसी के भी खिलाफ बात नहीं कर सकते अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं ये कानून फ़ायदेमंद है आपके लिए? जी फ़ायदेमंद तो नहीं है। देखें, अब जब हमारे पास सबूत ही नहीं है किसी चीज़ का तो हम लोग कैसे उसके बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं होगा, अगले बंदे को भी नहीं होगा कि हमारे पास सबूत है, वो तो हमारी बात पे कोई यकीन करेगा ही नहीं। तो अच्छी बात है ना। आप देखें, मिसाल के तौर पर एक बंदा आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है झूठे, आपको लगता है कि इससे मेरी तौहीन हो रही है, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो रही है माशरे के अंदर, लोगों के अंदर या मतलब कौमों के अंदर, तो आपको तो फ़ायदा हुआ, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं उस बंदे के खिलाफ। सर केस तो कर सकते हैं, ज़ाहिर बात, अगर सबूत हो तो केस कर सकते हैं। अगर जब सबूत ही नहीं है, कोई बंदा, आजकल आपको पता है कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई कुछ भी नहीं होता, जब अपने दम पे ही बंदा जीता, अपने दम पे ही मरता है। हाँ, यहाँ पे ये कह देते हैं हम लोग आपके साथ हैं, हम चलेंगे, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। जब कानून की बारी आती है, जब थानों में जाना पड़ता है, कचहरियों में जाना पड़ता है, कोई साथ जाने को तो राज़ी नहीं होता। हर बंदा अपना अपना बचाता है, मेरा टाइम बच जाए, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। कोई बंदा भी ऐसे नहीं होता सर। सर मिसाल के तौर पर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। आपके जो पसंदीदा लीडर हैं जो भी हैं, अब उनके खिलाफ एक बंदा बैठ के एवं ही बातें कर रहा है और वो झूठी मन गलत बातें कर रहा है जिनका कोई मतलब कुछ सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, तो आपके लीडर उन पर केस कर सकते हैं कि भाई सबूत लाओ, तो ये तो फ़ायदा हुआ ना। जी सर, बिल्कुल केस कर सकते हैं। अब देखें ना, हमारे जो लीडर हैं इमरान जेल में पड़े हुए हैं। अब हर बंदा यहाँ पे बातें करता है, जो नॉन लीगी है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। अब देखें ना, महंगाई इतनी हो चुकी है कि किसी इंसान के पास टाइम ही नहीं होता अपने काम के अलावा। जो बेचारे दफ्तर लोग हैं वो उन्होंने दफ्तरों की अपनी तरफ निकल जाना है, जो बेचारे रोज़ी कमा रहे हैं वो रोज़ी की तरफ। इन्होंने आवाम को इस तरह फंसा दिया है कि वो अपने लीडर के बारे में बात कर ही नहीं सकता और ना वो कानून की तरफ जा सकता है। अब ये देखें, हम लोग जाएंगे, एक बंदा जाएगा, दो बंदे जाएंगे, तीन जाएगा, चौथे बंदे ने मना कर देना, भाई मेरे पास तो टाइम नहीं, वो बचने के लिए इधर से निकल जाएगा। भाईजान, इसी वजह से महंगाई ने लक तोड़ दिया है, किसी तरह भी नहीं जा सकते, क्योंकि हर बंदा घर में बैठ गए, उधर बैठ गए, हर बंदा रोज़ी के पीछे भाग रहे। इन्होंने इस तरह मुल्क को कर दिया कि कोई लीडर के बारे में बात करता भी है ना बंदा, उसके खिलाफ हम लोग केस नहीं कर सकते। इन्होंने हमें को ऐसा फंसा दिया। सर उन्होंने इजाज़त तो दी है ना आपको, पाकिस्तान का कोई भी शहरी केस कर सकता है अगर उसको लगता है कि बंदा मेरे खिलाफ इल्ज़ामात की बारिश कर रहा है और वो गलीज़ इल्ज़ामात हैं और वो झूठे हैं, तो आप केस कर सकते हैं। सर गरीब बंदा केस नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है,
जिसका काम अच्छा है, जो बिल्कुल अपने काम से फ्री रह सकता है कि 2-3 घंटे निकाल सकता है, सर वो केस कर सकता है। हमारे लोग ये देखो रेडियो वाले कैसे टाइम निकालेंगे, अपना रिजक कमाएं बच्चों का, या हम लोग जाके केस लड़ें। जब हम भी जाके केस लड़ेंगे उन्होंने हमें ही अंदर कर देना, चलो भाई बात ख़त्म। ये हमारे मुल्क के हालात हैं और ये है हमारे मुल्क की जो कारकर्दगी अभी हो रही है। अब जो भी अब देखें हमारा लीडर है उसके बारे में कोई बात करता है, अगर हम उसको यहाँ पे एक झंडा ही लहरा दें, पुलिस आती है 10 से उठाती बिल्कुल बंद करके अंदर कर देती, लो जी हमारा काम तमाम। हम क्या बोले लीडर के बारे में, जब उन्होंने पकड़ के कर ही अंदर देना है तो फिर बंदा उससे बेहतर है कि कोई बंदा ऑप्शन ना ही ले, अपना रिजक कमाए। जब हमारे लीडर की बारी आएगी इंशाल्लाह वो बाहर निकलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। सर इस कानून का जो इतलाक है ना वो सोशल मीडिया पर भी होता है, यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक खबर देखी है वो झूठी खबर है और आपने बगैर तस्दीक के उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, तो इससे नहीं समझते कि अगले बंदा जिस पर एवं मतलब इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उसकी शख्सियत को फ़ायदा हुआ। सर देखें ना, इल्ज़ाम तो हर बंदा लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ आप पे, आप भी मेरे पे लगा सकते हैं। बात ये है कि सबूत की बात है, जब हमारे पास सबूत ही नहीं हम लोग सर कुछ भी नहीं कर सकते। यही तो कानून है। हाँ जी यही कानून है। जब देखें ना कानून को ही नहीं पता होगा, चले हम एक बेसिकल हम जाके केस कर देते हैं कि ये हमारे लीडर के बारे में बात कर रहा है या मेरे बारे में बात कर रहा है। मिसाल है सर, बात सुने, मिसाल ये है कि अगर कोई बंदा यहाँ से गुजर के कह रहा है आपको और उसे सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अलग ऐलान ये कह रहा है कि खान साहब पर जो तोशा खाना केस है उन्होंने गरियाँ चोरी की हैं, अब अदालत ने ये कह दिया है कि गरियाँ चोरी नहीं की, अदालत से ये फैसला आ चुका है, तो ये तो आपके लीडर को फ़ायदा हुआ, आप बात कर सकते हैं उसके खिलाफ, आप केस कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि उन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं किसी किस्म का कि हम लोग अपने काम कारों से बाहर निकले। पहले होता था काम काज होते थे, अल्लाह पाक का करम होता था, हमारे मुल्क पे बड़ी खैरें होती थी। अब हर बंदा बेचारा काम काज में फंसा हुआ है, वो अपनी रोटी कमाए ये इन चक्रों में पड़े। आप मुझे ये बताएं, मुल्क का ऐसा हालात बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि जिसका हद हिसाब। खान साहब के दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, ठीक है, उसके बाद सर अब देखें आप पेट्रोल किधर पहुंचा हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया।